Okay, good morning. Good morning, boys. Firstly, today I will conduct a group discussion. So, before starting this group discussion, I would like to say that please introduce yourself one by one, and we will start from Navpreet, after then Chirag, after then Rajat, and last one Ajay. So, Navpreet, please introduce yourself. I am Napri Singh and I am 18 years old. I came from a small village, Arno, near the Patna city. I have recently passed my 12th from Sparkling Kids, the foundation Patna. There are 9 members in my family: my father, mother, younger brother, and 3 cousins, with my aunt, my sister-in-law, and me. I love to reading books, watching movies, and knowing facts about the nature. And my aim is to join Indian Armed Forces. For that, I am preparing for CDS in by online platform through MGS Academy. Thank you. Okay, thank you, Navpreet. Nice. Next is Chirag. Please introduce yourself, better. So, good morning, sir. My name is Chirag and I am 17 years old. And I have passed my 12th class from RKSD Senior Secondary Public School. And currently I am studying in RKSD College in the course of BSc Computer Science. And my family have 4 members: my father, my mother, me, and my younger sister. And my aim is to join Indian Armed Forces. And for that, I am preparing for NDA exam through the YouTube channel of An Academy. Okay, that's good. Best of luck, Chirag. Rajat, please introduce yourself. Jain sir, my name is Rarat. I am 22-year-old. I am from Farl, district Kathal. I am graduate from DAV College, Piowa. I have C certificate with Bravo grade. We are 5 members in my family: me and my brother, my mom and my dad, and my grandma. Okay, thank you very much. And Ajay, on your mics and introduce yourself. My name अपने is माइक Ajay आप दूर Kumar रखिए, and माइक माइक को दूर, माइक को छोड़ दो नीचे. हाँ, अब बोलिए. my name is Ajay Kumar. I am 23 years old and I have I have passed MA from Vipra University and I I live in village Dant, district Kathal. I want to be a officer in Indian Army and now I am preparing SFB from for officer defense. Okay, thank you, Ajay. Due to I think so some network issues, your voice is not clear. It's okay. Off your mic, Ajay, and when you want to participate in the group discussion, you can on your mic and you can join us. जब आपका मन करे आप mic on करके बात कर सकते हैं. Okay, gentlemen, my name is Manoj Kosik, and today I will conduct a group discussion among with you all guys. And today our topic is farmer bill, and there are some basic rules of this group discussion. Number one, this is an informal group discussion. This is an informal. So you can participate whenever you want to speak, in what manner you want to speak, you are totally free. Second, you can speak against the subject or in favor of the subjects as you feel comfortable. And gentlemen, this is not a debate. Just feel free to share your ideas in this group discussion. Next one point is most important. This is not a debate, and do not fight and do not try to find some faults or some mistakes in each other or with your other friends candidates. So just feel free as you feel free in your classroom, in your home. So just like you can discuss this topic here. So any doubt, guys? No, sir. No, sir. Okay. Regarding language, I would like to say you that you can use English language preferably, but if you are not comfortable in English language, then you can use Hindi and English mix. So try to speak in English first. If you are not comfortable, you can switch to Hindi language. And if you again feel comfortable, then you can again switch to English language. So you can use English language, Hindi language, or mixture of both language, Hindi and English. No third language is
allowed it in this group discussions. You cannot use your native language like Punjabi, Haryani, Marathi. So try to avoid such type of tones in your GD. So gentlemen, I give you just 10 minutes, and the topic is Kisan Bill, Farmer Bills. Start the GD, please. Time start now. So gentlemen, firstly, I would like to talk about the three bills one by one. The first bill is Farmers Essential Commodity Bill, which introduce that any person can collect grain without the circumstances of war and any natural calamity. The second bill is the Farmers Agreement on Price Assurance or Farm Service Bill, which introduce the contract farming. The third bill is a Farmers Produce Trade and Commerce Bill, which introduce that any farmer is independent to do interstate trade. So if you want to want to add any other point, then you can add. Well, gentlemen, today our topic is the Farmers Bill, and I would like to divide my topic into 4 parts. Firstly, what are the 3 bills? Secondly, what are these effects, the effects of these bills? And thirdly, what is my opinion? And fourthly, what should be done to enhance the situation of the 3 bills? So firstly, what are the 3 bills? The first bill is the amendment of the bill of 1955, which states that some articles like onion, potato, and the edible oils, etc., are removed from the necessary items and they can be stored without any limit. And the second bill is the Farmers Trade and Commerce, in which the farmer are given the free authority to sell any of their grown items inside the state or outside the state with any of the party they want. And the third bill is the farmers the agreement of the farmers, and in this bill the farmers can do any agreement with any individual and a company, any state government, and they can sell anywhere they want to contract with anyone. So these are the 3 bills. So gentlemen, coming to the advantage and disadvantage of this bill, the advantages are like this, that there will be more availability of buyers, that now more competition will be available, and the farmers can get more prices of their crops, and they can get choose their prices, select their prices before the production through interstate through contract farming, and they are freely permitted to do any interstate trade. So coming to the disadvantage, the big businessman can collect the grains at very high volume, and thus they can do the black marketing during the scarcity. Coming to the next, in the second bill, it is decided that the price will be decided by the officers of mandi, but they can show dishonest behavior towards the farmers when they will be bribed by the big companies. So gentlemen, if you want to add any other point, then you can add. Yes, Nafrit, I agree with you. These are the effects of the 3 bills, but I also want to some add other effects also. Like for the first bill, if we consider that there is no limit to the stock you can save, so this will lead to the black marketing directly among the traders, and this will increase the ये जो अगर ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई तो महंगाई भी बढ़ सकती है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है. So now we come to the second bill. If the farmers are free to contract with any company, but there is not any issue that if a company backups from the contract, then what should be done and what should be the and who should have the authority to settle. Okay, gentlemen, you have stop, gentlemen. You have just 1 minute and conclude this topic. You have just a 1 minute. Start. So gentlemen, So as we firstly, have discussed the effects, yes, sir, you are right. Actually, firstly, we should talk about the every bill one by one, and I think that this is the right method. And after that, we should come to its advantage and disadvantage. And then, yes, if and you what want should be to done any to another improve all point, of the then you bills. can suggest also. Yes, the solutions also should be included. That what can be a solution. So I think that we should talk about the solution. That if you want to give any solution.
Yes, I think in the case of first bill that the first bill is not necessary as it will lead to the black marketing directly. So what is your opinion on the first bill? I think that there should be some more strict rules implemented on the means collection of grains, means about how much quantity it. Stop. Time is over, gentlemen. And okay, I will discuss your results. Just write down and note down your mistakes you have done in this group discussion one by one. So Rajat and Ajay, जी सर. you have not participated. You have not speak even a single sentence. आपने एक भी sentence नहीं बोला इतनी देर से. तो ये मेथड ठीक नहीं है. ये आपके खिलाफ जाएगा. यानी आप जीडी में फेल हो जाओगे. आपको जीडी में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे. अगर ये 10 नंबर की जीडी है तो आप दोनों को ही 0 मार्क्स मिलने वाले हैं, अजय एंड रजत. तो मुझे बताओ रजत, आपने वीडियो देखा था, कैरी किया था? जी सर. तो बोले क्यों नहीं? पार्टिसिपेट किसका वेट कर रहे हैं आप? यहाँ पे कोई आपको बोलने का मौका नहीं देगा कि आप यहाँ तो फिर भी मौका मिल रहा था आपको, आप बोल सकते थे. जब आप एसएसबी में जाएंगे वहां तो 15 से 18 बच्चों का ग्रुप होगा और वहां तो बिल्कुल एकदम से फिश मार्केट बन जाएगी, सब्जी मंडी बन जाएगी. वहां पे आपको बोलने का मौका कोई नहीं देने वाला. अगर आप ऐसे शांति से सुनते रहेंगे तो यू विल बी फेल इन एसएसबी. ठीक है, तो आपको किस चीज का वेट कर रहे थे मुझे बताइए. अगर इंग्लिश का इशूज है तो आप हिंदी में बात कर सकते थे. ऑप्शन आपको दे नहीं सर, इंग्लिश का ही सुन सर, अपने टर्न का वेट कर रहा था. नहीं, टर्न नहीं आएगी, टर्न नहीं आएगी. दिस इज एन इनफॉर्मल डिस्कशन. यहाँ कोई टर्न नहीं आती. जिसका जब मन करे बोल सकते हैं. ये आपको बताया था स्टार्टिंग में. जब मन करे, जैसा फील करे, जिस महीने में मन करे आप बोलिए. तो आपको बोलना है. अगर नहीं बोलोगे तो आप फेल हो जाओगे इस टेस्ट में. नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी रहना भी. ठीक है? यस सर. जितना बोलोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलने वाले. आप ऐसा समझ लो अभी फिलहाल. और अजय, आपका क्या इशू है? आप ही क्यों नहीं बात कर रहे? किसान बिल पे आप तो फिर भी रिपोर्टर टाइप रिपोर्टर है आप, तो आपको तो थोड़ा बहुत नॉलेज था किसान बिल के ऊपर. आप अपने व्यूज बिल्कुल भी नहीं दिए. क्या रीजन है? सर सेम रीजन है जैसे सेम रीजन था कि टर्न आएगी. कोई टर्न नहीं आएगी. 10 मिनट का जीडी है, समझ लो 5 से 6 मिनट में ओवर हो जाएगा. आपको अपने व्यूज रखने हैं. मौका छीनना पड़ेगा आपको बोलने का. आपको उस बार टाइम का वेट करना पड़ेगा कि जब कोई चुप हो आप उस टाइम अपना बोलना स्टार्ट करें. इस टाइम का आपको वेट करना पड़ेगा. वहां पे आपको बोलने का कोई मौका नहीं देगा. नवप्रीत, आपका सब कुछ ठीक था. इनिशिएटिव आपने किया, पीओई आपका गुड है, ऑर्गेनाइजिंग गुड था, कॉर्पोरेशन गुड था, डाटा भी गुड था. बस एक प्रॉब्लम था जो आपने आज मिस्टेक किया है, वो है आपका कि यू सेड दैट डोंट sorry, you said 2 times if you want to add any point gentlemen you can add. You cannot dominate the group. You can, आप इस तरीके से मत किसी को बोलिए कि अगर आप कुछ में ऐड करना चाहें तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं. आप ऐसा मत बोलिए. इसका मतलब कि आपने जो डाटा दिया है उसमें कमी है. आप उसमें और ऐड की डिमांड करते हैं कि मैं अगर आपको ऐड करना कर दो, मतलब कि आपने फुल प्रूफ डाटा नहीं दिया अपना. आप अपनी सिर्फ ओपिनियन रखिए जितना आपको रखना है और आप चुप हो सकते हैं रखने के बाद. ठीक है? आप किसी को ऐसे अलाउ मत कीजिए कि आप इसके ऊपर क्या विचार है, आपका इसके ऊपर क्या विचार है. इस चीज को अवॉइड करो. ये अच्छा साउंड नहीं करता. बाकी सब कुछ ठीक था, परफेक्ट था. अगर मैं 10 नंबर में बात करूं तो 10 नंबर में से आपको 7 नंबर इस जीबी में आपको देता हूँ. ठीक है? दैट्स गुड. ओके सर. हाँ, पीओई में कोई दिक्कत नहीं था. नाइस. तो प्रैक्टिस किया आपने? यस सर. गुड. वो प्रैक्टिस दिख भी रहा था. नेक्स्ट वन चिराग. चिराग, तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग ठीक था, कॉर्पोरेशन ठीक था, गुड. पावर ऑफ एक्सप्रेशन में थोड़ा सा आपका हरियाणवी टोन है रहता है. जब आप इंग्लिश में बोलते हैं तो थोड़ा सा हरियाणवी टोन आपका आता है. वो एक नेचुरल चीज है, वो आएगा. लेकिन थोड़ा सा इसको और हमें इस पे ओवरकम करने की जरूरत है थोड़ा सा. ठीक है? ये भी थोड़ा सा था. बाकी और कहीं दिक्कत नहीं थी किसी तरीके की भी. और कभी भी अपने साथियों से ऐसा क्वेश्चन मत करो कि आपका क्या ओपिनियन है या आप इसमें क्या ऐड करना, ऐसा मत बोलो. वो अच्छा नहीं लग रहा है. इसको हम अवॉइड करेंगे. आप अपनी बात रखिए ग्रुप के सामने और दूसरों की बात को ध्यान से सुनिए. ठीक है? इतना सा आपको करना चाहिए. आई कॉन्टेक्ट आपका ठीक था दोनों का. दैट्स गुड. अगर मैं बात करूं तो आपको इसमें नंबर दूंगा 10 में से 6.8. ठीक है? चिराग, दिस इज योर मार्क्स. एंड बात करूं मैं अजय की और रजत की, क्योंकि बच्चे आप अभी अभी नए नए आए हैं इसमें. आपने अभी अपना क्लास जीडी का लगा नहीं है. ये दोनों का क्लास सिलेबस हो चुका है दोनों बच्चों का. तो आपका जो सिलेबस था वो मैंने आपको बोला कि आप वीडियो ग्रुप डिस्कशन पर भी हमारी कोई वीडियो बनी नहीं है.
कोई बात नहीं, आपको वीडियो मिल जाएगी कि ग्रुप डिस्कशन करते कैसे हैं। चलिए, तो आई कांटेक्ट हमेशा बना के रखना होता है ग्रुप के साथ। अजय का भी ध्यान कहीं और था, बीच बीच में रजत का ध्यान कहीं और था। जब हम जीडी कर रहे होते हैं तो हमें अपने कैमरे की तरफ देखना, अपने ग्रुप के साथियों की तरफ देखना कि वो क्या बोल रहे हैं। जब कोई साथी बोल रहा हो तो उसको ध्यान से सुनिए। जितना जीडी के अंदर बोलना जरूरी है, उतना ही ज्यादा अपने कैंडिडेट्स को, जो अपने साथी लोग हैं, उनको सुनना जरूरी है। आप उनकी बात सुनिए। बच्चे एसएसबी में गलती क्या करते हैं कि जब वो अपनी बात बोल लेते हैं, 30 सेकंड 40 सेकंड जब वो बोल लेते हैं, उसके बाद वो अपने ग्रुप के मेंबर को नहीं सुनते। 90% बच्चा अपने जो दूसरे साथी बोल रहे हैं उनको नहीं सुनते। वो क्या करते हैं, वो अपना ही तैयार कर रहे होते हैं माइंड के अंदर कि मुझे नेक्स्ट टाइम क्या बोलना है। तो उनका जो एक पार्टिसिपेशन होता है जीडी के अंदर, वो टूट जाता है। और इससे आपका कोऑपरेशन का क्वालिटी इफेक्ट होता है और सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी क्वालिटी इफेक्ट होता है। यू आर नॉट रिस्पांसिबल टू डू दिस टास्क विद योर ग्रुप मेंबर्स। जीटीओ ने आपको एक काम दिया है कि आपको जीडी करना है, टॉपिक दे, तो आपको पूरी तरीके से अपने ग्रुप के साथियों के साथ इन्वॉल्व हो जाना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, घर में कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो घर के परिवार के लोग सब बैठ के डिस्कस करते हैं कि हम ऐसे करेंगे, यहाँ ये मेन्यू रखेंगे, ये आइटम लेके आएंगे, ये डेट फाइल, सब लोग आपस में बैठ के जैसे डिस्कस करते हैं, उसी तरीके से ये ग्रुप डिस्कशन करना होता है। अब सिंपल सी बात ये है कि जब हम मान लो आपके घर में आपके छोटे भाई की शादी है और शाम को पूरा परिवार बैठ के सलाह करता है कि ठीक है हम ये डेट फाइनल करते हैं, ये मैरिज हॉल हम फाइनल करते हैं, यही हम आइटम्स लिस्ट में रखने वाले हैं, इन रिलेटिव्स को बुलाने वाले हैं, तो हम इस तरह से एक जनरल डिस्कशन करते हैं अपने परिवार के लोगों के साथ। वो एक इनफॉर्मल डिस्कशन होता है। ऐसा ही इनफॉर्मल डिस्कशन आपको जीडी में करना होता है, बिल्कुल सेम। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप अपने घर में बात करते हो तो आपके ऊपर तो प्रेशर नहीं होता। अगर आप घर में छोटे भाई की शादी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं 10 परिवार के लोग, तो उसको एंजॉय करते हैं कि सब लोग इकट्ठे बैठ के बात करते हैं। आप उसको एंजॉय करते हो, आपको नॉलेज होता है हर चीज का कि भाई की शादी कहाँ होनी है, क्या क्या रखना है, तो आपको पता होता है, तो आप खुल के बोल पाते हो। यानी कि आपको नॉलेज होती है, तो इसलिए आप उस चीज को एंजॉय कर पाते हो घर में जीडी करते वक्त। इनफॉर्मल जीडी जब आप करते हो किसी टॉपिक के ऊपर, कोई फंक्शन के ऊपर। लेकिन जब आप एसएसबी में जाते हैं तो आपको ऊपर एक तो प्रेशर होता है कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। एक ये प्रेशर रहता है। दूसरा, टॉपिक की नॉलेज नहीं होती बच्चों को। बच्चे टॉपिक के लिए प्रिपेयर नहीं होते, उनको इतना अवेयरनेस नहीं होता। मतलब अवेयरनेस इन द सेंस, जैसे कि अभी किसान बिल है, पिछले 1 साल से होने को आया है लगभग, इसके ऊपर डेली न्यूज में आया था लगभग 7-8 दिन तो कंटिन्यू हमारे मीडिया में रहा है कि किसान बिल क्या है, सब कुछ था। क्या क्या इस बिल के अच्छी बातें हैं, क्या क्या इस बिल की नेगेटिव बातें लग रही हैं। और गवर्नमेंट ने ऑफर भी दिया है किसान को कि भाई आप अगर इसको अमेंडमेंट कराना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सुधार करने के लिए तैयार है। कुछ पॉलिटिकल ग्रुप भी ले गया ये आंदोलन, तो सब कुछ डिटेल न्यूज में था। अगर आप एक ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपका एक फर्स्ट हैबिट होना चाहिए, एक हैबिट होना चाहिए, डेली 30 मिनट्स का न्यूज देखना बिना किसी के कहे। उसके लिए आप ये वेट मत कीजिए कि मैं आपको होमवर्क दूंगा, नहीं। ऑफिसर बनने के लिए आपको 1 साल लगेगा। 1 साल की तैयारी अगर आप कीजिए, उसके बाद आप इतनी जबरदस्त तरीके से डेवलप हो जाएंगे, तब जाके आप एसएसबी को बड़े आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। एसएसबी के अंदर मैं आपको कुछ जनरल बातें बताने वाला हूँ। जीडी आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आप उसको नॉलेज होगा, और नॉलेज के लिए आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं। एक न्यूज देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, तीसरा अच्छे बुक्स पढ़िए। ठीक है, जितना आप बुक्स पढ़ेंगे, नेशनल इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर बात करेंगे, वो आप बात कहाँ से करेंगे, ये आपको सब कुछ हमारी ऐप में अवेलेबल है। मैंने कल रात भी पोस्ट किया है, आप उसको देखिए, वीडियोस को, लेक्चर्स को देखिए। वहां से आपका माइंड डेवलप होगा, आपके अंदर आइडियाज आएंगे, थॉट्स आएंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा बच्चों। ऑफिसर बनने के लिए अगर आप सोचें कि कोई चीज पढ़ के उसको एज इट इज रिप्रेजेंट कर दें और हम ऑफिसर बन जाएंगे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। चाहे आप यूपीएससी की बात करें, सिविल सर्विसेज की बात करें, चाहे आप इंडियन डिफेंस फोर्सेज की बात करें। हमारी जो एजुकेशन शिक्षा जो रही है अभी तक, वो प्रॉब्लम ये रही है, सबसे बुरी हालत में हम लोग पढ़े हैं, हमें पढ़ाया गया है। क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें क्या है कि बच्चे को पढ़ाया जाए, वो चीज को क्रैम करे, एग्जाम्स में जाके लिखे पेपर के ऊपर, पेपर वाला उसको चेक करके उसको मार्क्स दे दे। ये इस पैटर्न से हम लोग पढ़ते आए अब तक। ये पैटर्न से आप ऑफिसर नहीं बन सकते। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें इस तरह के एजुकेशन के अंदर हमें मिला है, इस तरह का एजुकेशन सिस्टम हमारे सामने है। आपको सोचने वाला बंदा बनना पड़ेगा। यानी कि एक ऑफिसर बनने के लिए आपका थिंकिंग स्किल बहुत हाई होना चाहिए। थिंकिंग स्किल यानी कि एक इमेजिनेशन स्किल आपका हाई होना चाहिए। आपने जब किसान बिल को देखा, टीवी में सुना, तो जो भी लोग उसके बारे में अच्छा बोल रहे थे, आपने उनको सुना और उनकी बातों को रट लिया कि हाँ ये अच्छी बातें हैं।
फिर जो उसका अपोज कर रहे थे किसान, उनकी बातों को सुना, फिर लगा कि नहीं यार ये तो वाकई में ही बुरा है, ठीक है, तो वो आपको बुरा लगने लगा। अगर आप यहीं तक सीमित हैं तो आप ऑफिसर नहीं बन सकते, ये आपका ऑफिसर बनने वाला माइंड नहीं है। आपको क्या करना होगा, जो इसके फेवर में बोलते हैं उनको सुनिए, जो इसके अपोज में बोलते हैं उनको सुनिए, और फिर बैठ के 15 मिनट अपने ठंडे दिमाग से सोचिए, अपना कंसेप्ट माइंड में डेवलप कीजिए कि ये वाकई में ही सही है, क्या ये वाकई में ही अगेंस्ट है किसानों के, या इसका कुछ पोर्शन सही है, फेवर में है, कुछ पोर्शन अगेंस्ट है। इस तरीके से मेरे बच्चों आपको अपना खुद का डेवलप करना होगा कंसेप्ट, तभी जाके आप, जब तक आपका थिंकिंग स्किल डेवलप नहीं होगा, आप खुद के कंसेप्ट डेवलप नहीं करेंगे माइंड में, तब तक आप ऑफिसर नहीं बन सकते। बात को लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी चीज को पढ़ाया एज इट इज कहीं पे आप उसको उड़ेल रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें आपका कोई थिंकिंग स्किल नहीं है, आपने उस पर काम नहीं किया, माइंड से उसके ऊपर सोचा नहीं है, माइंड से उसके ऊपर डिस्कस नहीं किया अपने आप से, तो आप एसएसबी के अंदर या फिर यूपीएससी के कोई भी ऑफिसर्स लेवल के एग्जाम है, उसमें आप जहाँ पे भी जीडी होगा या कोई भी टेस्ट होगा, आप उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, चाहे कितने भी अच्छे आंसर दीजिए। आईएएस के इंटरव्यू में ऐसा होता है, बच्चे बहुत नाइस आंसर देते हैं, लेकिन वो आंसर उनके पढ़े होते हैं, उनमें उनके माइंड का कंसेप्ट कुछ नहीं होता है, उनके खुद की माइंड की लॉजिकल कुछ नहीं होता है, कुछ वो लॉजिक नहीं लगाते, अपना माइंड सेट डेवलप नहीं करते, जो पढ़ा है उसको एज इट इज रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इस तरह के माइंड सेट से एसएसबी में जाओगे तो आप फेल हो जाओगे। तो हमें करना क्या चाहिए, आप न्यूज देखिए, न्यूज देखने के बाद अपने माइंड में डिस्कस करो कि अरे वाकई में ये चीज सही है नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कृषि बिल को पढ़ना पड़ेगा। कृषि बिल अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, आप गवर्नमेंट की साइट पे जाकर उसको डाउनलोड करके देखिए कि ये बिल है, इसमें ये कानून है, इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। अपना खुद का माइंड सेट, एक थॉट डेवलप कीजिए, कंसेप्ट डेवलप कीजिए, ये सबसे बेस्ट मेथड है। यानी कि मेरा काम सिर्फ छोटा सा है, आपको एक सोचने वाला प्राणी बनाना है, सोचने वाला प्राणी, ना कि रट्टा मार के बोलने वाला प्राणी। अगर आप रट्टा मार के कहीं से पढ़ के उसको बोल रहे हैं सिर्फ, और आपका खुद का उसमें कोई माइंड इन्वॉल्व नहीं है, तो समझ लीजिए यू आर नॉट एबल टू बिकम एन ऑफिसर। अगर आप चीजों को पढ़ते हैं, फिर अपने दिमाग से सोचते, उसमें लॉजिकल चीजें देखते हैं कि इसमें क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, इस तरह का अगर आप एनालिसिस करते हैं माइंड के अंदर, इट मीन्स दैट आपका जो लॉजिक है वो क्रिटिकल है, आप चिंतन कर सकते हैं, चीजों को दोनों पक्ष देख सकते हैं, और अपना उसके ऊपर अपना थॉट्स डेवलप करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके के बंदे हैं तो आपके लिए ऑफिसर बनना इतना ही आसान है जितना कि एक मैं क्या बोलूँ, जितना कि आपके लिए सड़क के ऊपर चलना आसान है। आप ऐसे मान लीजिए, जैसे आप सड़क पे चलते हैं ऐसे इतना ही ऑफिसर बनना आसान है। अगर आप नहीं ऐसा कर रहे हैं तो ये आपका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इसको आपको इम्प्रूव करना होगा जेंटलमैन। सो आई कॉन्टेक्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका आई कॉन्टेक्ट ग्रुप के अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड in GD. It means you have no knowledge and no data, and you are feeling bored, or you are not a cooperative guy, or you are not a responsible guy also. So जब आप GD कर रहे होते हैं तो अपना इंटरेक्शन ग्रुप मेंबर के साथ रखिए, एक ये बात का ध्यान रखिएगा, खासकर रजत और रजय का नहीं था। तो ठीक है बच्चों, अभी हमारा जो क्लास है ओवर होने वाला है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप उसको दोबारा से रीज्वाइन करेंगे इसी लिंक से। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद। कोई डाउट हो तो पूछिए आप सभी। एनी डाउट on your mics guys? Any doubt? No, sir. ओके ठीक है, आप इस लिंक को एक बार रीज्वाइन कीजिए क्योंकि हमारा क्लास अभी ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद। अभी इसको रीज्वाइन करें लिंक से।